sessions and the closing remarks. So, starting with the basic introduction, who we are and what we are doing in the education field, and how we are empowering the teachers and the students. Basically, TAG the Education Consultancy, founded in 2009, 16 years of legacy in educational innovation across Pakistan. Our presence is the nationwide, all across the 4 provinces of Pakistan, and the main vision of TAG is to deliver the tailored, reliable, and integrated educational solutions under one roof, advancing academic standards nationwide. So, TAG the Education Consultancy is basically the solution provider, digital education solution provider, and we are serving since 2009. So you can say that our company is a edutech, and it's a resource development center for all academia, dynamic support, uh, it organizing the different enhancing quality education quality tools, delivering comprehensive solution for teachers, students, and school management teams. Our CEO's vision, Mr. Akbar Khurshid, says he wants to shift the education from traditional learning to the conceptual learning. Here we have a TAG at a glance by the numbers of what we are doing right now. Since 2009 and onwards, the active students enroll on different TAG platforms nationwide, 25K plus. The alumni is 50K plus. Animated resources we have, that is 4,000 plus, and still it is increasing day by day. The schools enrolled us from TAG is around 400 plus. They are using different gadgets. They are using different softwares developed by the TAG, and the online classes, which is delivering all across the Pakistan, especially in Balochistan, that is 64 classes per day. Here you can see our digital product suite. What we are doing, as the mission statement says, we want to provide all the solutions related to the education in under the one umbrella or the one roof. So TAG has developed from head to toe all the educational tools which are the need of any school. So here you can see number one, the TAG browser. TAG browser is basically the resource hub or the center which contain the different animations from grade pre-primary till second year, designed by our IT wing. The next is the LMS, which is the learning management system. It contains different resource material according to the mapping of your book, according to the different boards and curricula. So the next is the CBDS. CBDS is basically the computer-based testing system, which is providing the excellent solution to the institutes to conduct the assessments and exams without any cheating, or you can reduce the all the gaps of the assessments with the help of the computer-based testing system. Then the next is the SMS. SMS is basically the school management system. It is integrated with the, नहीं, बहुत सारे all the टीचर्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं हमारे यहाँ पे। आस्किंग टू ज्वाइन आ रहा है, आप लोग वहां से ज्वाइन तो करवा दें। okay. The backend team is doing all the things. So जैसे जैसे participants आते जाएंगे, we will grow. हम यहाँ से तो ऑन है ना, अभी बीच में ना मैं सर, वो तो बात की बात है, पहले अटेंडेंस तो लगे हमारी।
ठीक है, इसको हम इस तरीके से करते हैं कि जो लोग हमें पार्टिसिपेंट्स अब तक ज्वाइन कर चुके हैं, काइंडली जस्ट राइट डाउन योर नेम एंड द इंस्टीट्यूट नेम, और आप उसको चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्ड करते जाइए ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क होती जाए. Meanwhile, we are just describing the profile of the tag, so that meanwhile other participant can also join us. Okay, so we are waiting for the peoples जो कि पार्टिसिपेंट्स जो कि ऐड ऑन हो रहे हैं इस वक्त. तो मैं थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ इसको. जैसे ही रोल हो जाते हैं तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, जिन पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया सेशन, काइंडली जस्ट राइट डाउन योर नेम ऑन द टैग chat box and your institute name so that your attendance can be marked and your certificates will be sent on your email. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम. मैम मेरी बहुत सी कलीग्स हैं वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन आगे से ज्वाइन नहीं हो रहा. लाइक आप परमिशन देंगी उनको एंटर? लेकिन there are so many people right now joining and we are just giving the permission one by one. So हमने इसीलिए इसको थोड़ा सा वेट कर लेते. Within 5 minutes inshallah everyone will be enrolled. ओके मैम, थैंक यू सो मच.
ना आवाज ही नहीं आ रही। शिकायना ऐसे कैसे करती हैं शिकायना? समझ ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। I think most of the participant has been enrolled, so we have start our today's workshop. आप सबको वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, you are audible. चलिए, so let's begin, and I again welcome you all in online workshop entitled Empowering Teachers with AI Tools, Transforming Teaching and Learning, organized by TAG the Education Consultancy. I am Mrs. Arshana Muzari, Head of Academy. जी, आज का एजेंडा मैंने जैसे कि पहले डिस्कस किया, वी जस्ट गो थ्रू इट। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट द कंपनी, हु इज टैग एंड व्हाट दे आर डूइंग इन द एजुकेशन सेक्टर, एआई इन एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ टीचिंग एंड स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आप तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक बंद रखिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास लास्ट 20 मिनट्स हैं फॉर क्वेश्चन आंसर्स एंड क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए, तो उसमें फिर आप अपने जो भी क्वेश्चंस है उसको कीजिए। देन वी हैव 40 मिनट सेशन फॉर दी हैंड्स ऑन एआई टूल्स डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया था, बट उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने अभी हमें दोबारा ज्वाइन किया है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार टुडे, TAG the Education Consultancy is basically serving 16 years of educational innovation across Pakistan, and its presence is across the nation, all provinces of Pakistan, and the main vision is to deliver tailored and reliable integrated educational solution under the one roof. So ये हमारा एक मेन मिशन है जिसको हम लेके चल रहे हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, मुख्तलिफ पेडागोजीज के ऊपर डिस्कशन की गई है और उसके अकॉर्डिंगली उनको डिज़ाइन किया गया। सो क्या क्या हैं वो चीज़ें, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, एंड in demonstrative session you will also learn how these tools are beneficial for you and what the AI is saying and how we can integrate AI in our daily classroom. Kindly please अपने हेड माइक जो है उनको स्विच ऑफ रखिए, म्यूट रखिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप चैट बॉक्स के अंदर सेंड कर सकते हैं।
प्लीज अपने माइक जो है वो म्यूट रखिए। अपने आप माइक म्यूट रखिए ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। जो भी आपकी क्वेरी है बैकएंड के ऊपर टीम मॉनिटर कर रही है, वो आपके क्वेश्चंस को आंसर भी करेगी और आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे ताकि हमारा सेशन स्मूथ जा सके और बाकी जो सुनने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो टैग दी एजुकेशन कंसल्टेंसी जो है वो एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि तमाम डिजिटल एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसके लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या हैं, एक डायनेमिक रिसोर्स हब है जो कि स्टूडेंट, टीचर और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को एम्पावर कर रहा है। Here we have the CEO's vision, and his vision, Mr. Akbar Khurshid, is basically his vision is to shift the education from traditional learning to conceptual learning. Okay, here you can see tech at a glance in numbers. Different active students, alumni, animated resource hubs, up to 4,000 plus we have. Then we have different schools enroll with us. We are facilitating with the help of different gadgets and the softwares. Daily online classes conducted across Pakistan. So our digital product suite is comprised on these different resources. You can see over here. Tag browser, the resource hub, complete LMS solution, computer-based testing system, school management system, customized content related to the books, live online classes, STEM and robotics, aligned with your book and customized kits, digital Montessori apps. These apps is for pre-primary classes and it is aligned with the single national curriculum of Pakistan. Nationwide franchise system is also offering. We worked on the core academics. Core academics is basically the support of your academics in your school, where you have to find out the different gaps. So core academics के जरिए हम वहाँ पे उन gaps को cover कर रहे होते हैं. Then tech e-schooling system and the e-academy. So this is our total digital product suites, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं और मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो उनकी सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं. Here you can see a browser. Tag browser is basically a customized application developed by the Tag, and it is desktop and Android. Both versions are available. This is basically the animated resource hub. It contains more than 4,000 plus animations by which the teachers can deliver their lecture, and the lecture will be the topical and extension of the topic will decide by the teacher. तो इसके अंदर मुख्तलिफ रिसोर्सेज दे दिए गए हैं. टीचर्स उन एनिमेशंस को ओपन करते हैं और अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करवा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स इंगेजमेंट आती है. व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर? Student engagement. This is one of the most important challenge in our today's classroom, that the engagement of the student is very much challenging nowadays. So until unless आपके पास कोई interactive content नहीं होगा, curiosity नहीं होगी students के लिए, तो student will not participate in your class और वो आपकी class के अंदर इतना interest नहीं ले रहा होगा. So critical thinking ability you can also increase. आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्सेज के जरिए मुख्तलिफ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करवा सकते हैं. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है जिसमें स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा होगा. ट्रेडिशनल लर्निंग को हम ख़त्म कर कर मॉडर्न और कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ आना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्स. As I already told you, the learning management system. So this learning management system is aligned with the book, is aligned with the single national curriculum from grade 1 till 8. And after
8 यानी कि 9th क्लास एंड मैट्रिक क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वो अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड अलाइंड हुए हैं, जिसके अंदर उनकी टारगेटेड लर्निंग को फोकस किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मुख्तलिफ वर्कशीट पैक्स ऐड ऑन किए गए हैं, उनके लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स ऐड ऑन की गई हैं अलॉन्ग विद दी एनिमेशन रिसोर्सेज, और इन तमाम चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ द एनालिटिक्स हम ट्रैक कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन टीचर्स की प्रोग्रेस को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनकी कोर्स कवरेज को मॉनिटर किया जा सकता है। टीचर्स खुद भी एंड मैनेजमेंट कैन आल्सो डू ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट इंटीग्रेटेड इफेक्टिव ई-लर्निंग learning management system. Then we have computer based testing system. So जब हमने स्टूडेंट को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दे दी, उसको हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिए, हैंडआउट्स दे दिए, अनसीन वर्कशीट्स उसने कर ली, देन इट्स द टाइम फॉर द असेसमेंट। तो उसकी असेसमेंट के लिए भी वी हैव अ सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम, CBDS शॉर्टली हम इसको कह रहे होते हैं। एंड दिस इज द स्मार्ट टेस्टिंग सिस्टम, इट गिव्स यू द एक्यूरेट रिजल्ट, on the spot result. It also gives the correct and the wrong answers. Every student will get the different paper with the same SLO, and you can reduce the cheating with the help of this computer based testing system. तो जो हमारे यहाँ एक कल्चर डेवलप हुआ है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इट नॉट ओनली रिड्यूस द cheating system, it can also reduce the laborious work of the teachers. या आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं, या आपने पेपर जनरेट कर दिया, एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट पेपर, आप उसको अपने सामने करवा लें स्कूल्स के अंदर, या फिर आप उसको घर पे भी इवन करवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, यू कैन नॉट ओपन दी अनदर पेज व्हाइल यूजिंग दिस टेस्ट, तो आपकी तमाम चीज़ें वहाँ पे कवर हो रही होती हैं, और यू विल गेट दी ऑन द स्पॉट टेस्ट। तो वो जो चेकिंग का एक लंबा एक लेबोरियस प्रोसेस है, तो उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। एंड देन वी हैव सम ऑफ आवर पब्लिकेशंस इंक्लूड्स प्री प्राइमरी का एक पूरा बंडल है, जिसके अंदर एक कंप्लीट हेड टू टो सपोर्टिंग बुक्स हैं अलॉन्ग विद द एप्स। वी मेनली फोकस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड दीज बुक्स आर अलाइन्ड विद माइक को जो है ना बंद कर दो। These books are designed on the engagement of content. Right now, इन बुक्स की जो खासियत है वो यही है कि इनके साथ आपको तमाम वो डिजिटल रिसोर्सेज मिलते हैं जो कि किसी भी टीचर को क्लास कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसके टेस्ट पेपर से लेकर उसकी पावर पॉइंट स्लाइड्स, उसकी एनिमेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, एंड दे ऑल आर करिकुलम बेस्ड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच को फॉलो कर रहा है। What are our upcoming projects? Upcoming projects के अंदर TAC is working on the VR technology. First time in the Pakistan, we are going to introduce the VR technology at a very cheap cost. जिसके अंदर आपने की तमाम pictures multiple billboards पे लगी देखी होंगी, different advertisement पे लगी देखी होंगी जो कि schools कर रहे होते हैं, but actually they are not doing it. उसके कुछ constraints हैं। एक तो ये एक्सपेंसिव है, और दूसरी हमारे पास इसकी टीचर्स की या मैनेजमेंट की हाउ नो इतनी नहीं है, दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट empowered. So what we are doing in upcoming years that we have to empower the teachers, management and students to make your classroom with these VR gadgets. तो आपके स्टूडेंट्स खुद बहुत इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में पढ़ रहे होंगे that they can touch the things, वो उन चीज़ों को जिन्हें पढ़ रहे हैं उन्हें देख सकते हैं 360 पे, they can feel, they can interact with them. तो वहाँ पे जो लर्निंग का लेवल होता है वो एक क्यूरियोसिटी बन जाता है, और फिर स्टूडेंट के लिए इंगेजमेंट कोई मसला नहीं रहती, जो हमारे लिए चैलेंज था वो ख़त्म हो जाता है। सो वी आर डूइंग VR in upcoming years inshallah. So the today's topic is the AI. Will AI will change the education? The main question rises nowadays, AI जो है वो क्या हम सबकी जॉब्स ले लेगा अपकमिंग ईयर्स के अंदर? हर काम AI कर रहा है, चाहे कोई एप्लीकेशन लिखनी है, चाहे कोई कंटेंट बनाना है, चाहे कोई राइटिंग स्किल्स करनी है, सो हमारा क्या हो? सो ये क्वेश्चन है जो हर प्रोफेशन
से ताल्लुक रखने वाले इंडिविजुअल के पास अराइज हो रहा है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कोई इंजीनियर्स हैं। इवन कंप्यूटर साइंस के अंदर जितनी तरक्की अब AI के जरिए हो रही है, वो इंडिविजुअल जो कहीं लैक कर रहे थे, लैंग्वेजेस के अंदर फंसे हुए थे कि C++ नहीं आती या पाइथन नहीं आती, सो नाउ यू कैन डू ऑल द थिंग्स इन योर सिंगल क्लिक। एक सिंगल क्लिक के ऊपर ही तमाम चीजें हो रही हैं। सो ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा AI का ऑन एजुकेशन, इसको आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आई विल जस्ट टेक अ 15 to 20 minutes more and then you will go for the hands on activity। तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, बट द बेसिक थिंग विच आई वॉन्ट टू डिलीवर ओवर हियर, you have to learn how to implement AI in your classroom। आप कैसे कर रहे हैं? क्या सिर्फ कोई प्रॉम्प्ट देना इंटीग्रेशन है हमारी क्लास के अंदर? स्टूडेंट्स आर ऑल्सो यूजिंग इट। टीचर अगर यूज नहीं करेगा, एम्पावर नहीं करेगा, सो स्टूडेंट तो करेगा, बिकॉज आज का जो स्टूडेंट है दे ऑल आर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, दे ऑल आर वेरी मच इनोवेटिव। हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, चीज़ों को ले रहे हैं, हमसे पहले जाकर चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी वी कैन अनलॉक द न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो हमें इससे बैक नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है, हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अडॉप्ट करना है और उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो न्यू पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही हैं, उसको हमें लेके चलना है। सो AI क्या कर रहा है एजुकेशन में? इंडिविजुअलाइज लर्निंग, पर्सनलाइज लर्निंग जिसको कहते हैं। आज से पहले आपकी क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स होते थे, तो उन 30 स्टूडेंट्स को हम एक ही पैरामीटर के ऊपर आइडेंटिफाई करते थे, एक ही पैरामीटर, एक ही लेसन प्लानिंग के जरिए उनको कंडक्शन क्लास की कर रहे होते थे। बट अब क्या हो गया है कि आप पर्सनलाइज लर्निंग कर सकते हैं हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। अब क्योंकि होम स्कूलिंग बहुत ज़्यादा इन है नाउअडेज, सो स्टूडेंट्स की करेक्टरिस्टिक, उसके इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर यू कैन डू दी lesson, plan your lesson with the personalized learning with the help of these gadgets or AI tools। you can streamline और learning methodology different। इस वक्त जो मेरे साथ टीचर्स कनेक्टेड हैं और हम सबका ही जो ताल्लुक है वो एक नोबल प्रोफेशन टीचिंग से है, और टीचर के लिए कभी भी लर्निंग फेज खत्म नहीं होता। मुस्तकिल नई चीज़ें हम सीखते हैं, अपने स्टूडेंट से ही सीखते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बदलते हैं, उनके फ्रेंड्स बदलते हैं, ईराज बदलते हैं, तो हम भी वहाँ लर्निंग कर रहे होते हैं। सो वी कैन ऑल्सो स्ट्रीमलाइन आवर लर्निंग मेथोडोलॉजीज। डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी अब तक पढ़ते आए, फ्लिप टेक्सोनॉमी आ गई, इसके अलावा हमारे पास TPAC की मुख्तलिफ थ्योरीज आ गई हैं। सो उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्लास के अंदर, जिसमें टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन विद योर क्लास इट्स वेरी मैंडेटरी। इम्प्रूव्ड एक्सेस, ऑटोमेटेशन, टास्क जितने भी हैं इंटरैक्टिव क्लासरूम्स के अंदर, ये सब AI कर। सो AI कैन प्रोवाइड द आंसर बट अ टीचर स्पार्क्स द क्वेश्चन। दिस इज व्हाट वी वांट टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि स्टूडेंट्स आंसर तो फाइंड आउट करके ले आएंगे AI से, बट क्वेश्चन का जो स्पार्क है वो एक टीचर ने ही इंट्रोड्यूस करवाना है। सो यू आर द की प्लेयर। आप जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक फैसिलिटेटर, एक टीचर रहेंगे, और आपकी जगह रिप्लेस नहीं होगी। हाँ, उन लोगों की जगह ज़रूर रिप्लेस हो जाएगी AI से जो इसको समझेंगे नहीं। जिन लोगों ने समझ लिया वो उससे आगे चले जाएंगे, और जिन लोगों ने नहीं समझा वो कहीं पीछे ही रह जाएंगे। सो इट्स अ नीड ऑफ टुडेज डिमांड, और द चैलेंज, आज का चैलेंज यही है कि हम इन टूल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप हासिल करें, देखें कि कहाँ कहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके बेस्ट आउटकम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक AI से रिलेटेड कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक्स हैं, वो यहाँ मैं टीचर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि वो अपने अपकमिंग सेशंस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें।
Okay. So right now we have two paths in AI era. एक आपके पास है विनिंग विद द एआई, या तो आप एआई टूल्स पे महारत हासिल करें, एआई न सिर्फ टूल्स पे बल्कि उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए, और दूसरा आपके पास है मिसिंग दी अपॉर्चुनिटी, आप उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दें। लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, तो विद इन फ्यू मंथ्स और दी ईयर्स आप देखेंगे कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए और आप अपने आप को खुद ब खुद बैकवर्ड फील करें। सो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना है। हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम ही यही होता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, आता भी सब कुछ है, करना भी चाहते हैं, हो भी रहा होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं आके रुक जाती है। सो दिस इज द मेजर कंस्ट्रेंट इन आवर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। एडवांटेज क्या होगा उन टीचर्स के लिए, उन एकेडमी और एजुकेटर्स के लिए जो अर्ली एआई अडॉप्शन करेंगे? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 2030 के अंदर एआई विल डोमिनेट द वर्ल्ड बाय 100%। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हर जगह ही एआई इम्प्लीमेंटेशन हो गई, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, लेबोरियस काम से हट जाएं और ऑटोमेटिक चीज़ें, पॉपअप्स आ रहे हों, एरर्स पता चल रहे हों, आइडेंटिटी रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हों। So 2030 is the estimated time where all the world will 100% will be dominated by the AI in every aspects, in every profession of the life. So you can be 5 years ahead, आप 4 to 5 years ahead होंगे अगर आप अभी से AI adoption पर आ जाएंगे, आप ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएंगे और अपने कैरियर के अंदर एक्सेल कर पाएंगे। इस आगे की स्लाइड्स के अंदर यू विल लर्न द फंडामेंटल फंक्शनैलिटी ऑफ एआई, हाउ टू गिव द प्रॉम्प्ट इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो मैं उसको थोड़ा सा क्विक लेकर जाऊंगी, वी हैव लिमिटेड टाइम, ताकि आपका डेमोन्स्ट्रेटिव लेस जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो सके, एंड फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकें। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में इस वक्त राइज हो रहा है, जस्ट राइट डाउन ऑन द पेपर, and then we will discuss in the last session of today's workshop. So essential tools कौन से beginners के लिए, common mistakes क्या करते हैं, and strategies क्या हैं, we will talk about it. चलो जल्दी से आगे जाते हैं और पहले समझते हैं what are the AI tools, different AI tools से आप को पता है कि मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें चैट जीपीटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, आई थिंक ऐसा ही है। आप में से हर टीचर इस वक्त जो इस सेशन के अंदर मौजूद है, एवरीबडी नो अबाउट इट। इसी तरह जेमिनाई, क्लाउड, फिर आपके पास पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ नोटबुक आ जाते हैं, LM, नैनो बनाना, ऑल दीज आर दी डिफरेंट AI टूल्स। सो वो क्या कर रहे हैं, कुछ रिसर्च एंड समराइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अगर आपको अपने टूल्स को समराइज करना है, अपने कंटेंट को समराइज करना है, एनालाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, डीप सर्च करना है, सो यू कैन यूज नोटबुक LM। ये आपके पास मोस्ट फेमस इस वक्त अवेलेबल हैं, मोस्ट कॉमन है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर वेरी इफेक्टिव एंड रिमार्केबल। परप्लेक्सिटी जो है वो भी यूज हो रहा है। फिर इमेज जनरेशन के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं, और नैनो बनानास और मिड जर्नी जो है वो आपको आपकी रेलिवेंट इमेज क्रिएट करके देते हैं। फॉर वीडियो जनरेशन अगेन डिफरेंट AI टूल्स आर अवेलेबल लाइक VO3 एंड Kling AI, CDS एंड ऑल दैट। ऑडियो जनरेशन के लिए भी आपके पास मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल है। सो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट टूल्स, हर एक चीज़ के लिए एक नया टूल है, और उसको यूज करना, उसकी सब्सक्रिप्शन लेना, इट्स अ हेड, एक मुश्किल टास्क है इस वक्त टीचर्स के लिए। सो व्हाट वी हैव डू, वी हैव समराइज ऑल द टूल्स अंडर द वन अम्ब्रेला फॉर यू, ताकि आप अपनी एक ही जगह लॉग इन हो और उसी जगह उन तमाम टूल्स को यूज कर सकें। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ।
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनको जब टीचर्स प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं तो वो कहाँ मेजर मिस्टेक करते हैं या कहाँ गड़बड़ होती है और फिर वो उनको उनके डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. So crafting high quality prompts, you have to only remember the AIM work framework. AIM framework, AIM. It's an abbreviation of A is for actor, I is for input, and M is for mission. एक्टर के अंदर जब आप कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे तो आपने इन 3 चीजों को अपने जहन में रखना है. एक्टर, इनपुट एंड मिशन. अब व्हाट इज एक्टर? टेलिंग द एआई व्हाट रोल टू एम्बॉडी. आपने क्या करवाना है, एक्ट एज अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, या आप कोई टीचर हैं, या आप कोई डॉक्टर हैं, या आप कोई मीडिया मार्केटर हैं. आपने उसको अपने बारे में थोड़ा सा इन सिंगल लाइनर बताना है, करना क्या चाहते हैं, हु यू आर, ताकि वो आपकी तरह सोच सके और आपके डिजायर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके. देन द नेक्स्ट पैरामीटर इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट यू वांट टू डू. तो आपने उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ टीचर ऑफ क्लास 4 और मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी कि आई एम अ साइंस टीचर एंड आई वांट टू क्रिएट अ वर्कशीट. और उस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो और कंटेंट है वो थोड़ा सी बैकग्राउंड डिटेल्स बतानी है, सो दैट एआई कैन डिस्क्रिप्टिवली वर्क ऑन योर गिवन प्रॉम्प्ट. Then the M is for the mission. Clearly state the specific goal or a task you want the AI to achieve. जो आप AI से करवाना चाहते हैं वो आप क्लियर स्टेटमेंट में लिखेंगे. वो तमाम इंडिविजुअल्स जो इन 3 चीजों में से किसी भी एक चीज को मिस कर देंगे वो अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे एंड दे विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. तो वहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग होगा और हमें लगेगा कि AI जो है वो हमारी मर्जी का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. So must remember, you have to follow the AIMS framework. ठीक है जी. So this is all about, once you will be practicing all these strategies, so after few days you will be feeling a full flash prompt engineer. आप जो है वो अपने आप को कुछ अरसे बाद you will practice the same framework, तो आपको आइडिया हो जाएगा एंड योर एआई विल आल्सो बी ट्रेन, और वो फिर आपके एंड के ऊपर उन इंजीनियरिंग जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसके एग्जैक्ट कंक्लूजंस को दे पाएगा. So instead of providing all information upfront, state your end goal and instruct AI to ask clarify questions. ठीक है. This ensures AI get exactly what it needs for a perfect personalized output. So ये तो वो बेसिक चीजें थी, बेसिक टूल्स थे सो फार जो हमने अब तक डिस्कस करे, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली टीचर्स जो हैं वो गड़बड़ कर रहे होते हैं और फिर दे विल नॉट गेट द एक्यूरेट रिजल्ट व्हाट दे वांट. सो this is all about from my side, and the next part will be demonstrated by Mr. Syed Asad Mashkoor, and he will demonstrate the hands-on activity on AI tools related to your classroom. So thank you so much, and next part will be continued by Mr. Asad. After the demonstration of Mr. Asad, we will have a question answer session. So we will take your questions in a live session, and inshallah we will answer all your questions. So thank you so much, Mr. Asad. Over to you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत शुक्रिया आप सबकी कीमती वक्त का जो आज आपने यहाँ हमें दिया अपना. ओके, आज का जो सेशन है सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है या एआई के रिगार्डिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जो आज हम एक सफ़र टूवर्ड्स न्यू पॉसिबिलिटीज इन एजुकेशन हम करेंगे. प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा आप सबको मेरी वॉइस ओके है. प्लीज़ चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्ड कर दें. थैंक यू. ओके.
ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली हर टीचर का एक ड्रीम होता है कि उसके स्टूडेंट्स सिर्फ ट्रेडिशनल लर्निंग रट्टाफिकेशन ना लगाएं, बल्कि समझें, सीखें और अपनी सोच को डेवलप करें। मगर कभी कभी हमारे पास वो टूल्स और रिसोर्सेज की कमी होती है, और आई नो दैट कि टीचर्स कितना बर्डनाइज होता है। सिर्फ उसके पास एक टास्क है, उसके पास मल्टीपल टास्क होते हैं, यानी उसको अपने टीचिंग प्रोफेशन को भी देखना है और अपने घर के प्रोफेशन को भी देखना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर मैं डिफरेंट टूल्स विद डिफरेंट एआई पोर्टल्स आपको दे दूं, ये आपके पास अवेलेबल है, और आप चैट जीपीटी, जेमिनी और फलां ठिमकाना जितने भी मैं आपको वेबसाइट बताऊं, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली आपको सिर्फ चैट जीपीटी और आई थिंक सो जेमिनी, बहुत हुआ तो कोई और मजीद एआई से आपको पता होंगे। लेकिन मसला कहाँ आता है, ये इतने सारे यूआरएल्स कैसे याद होंगे? ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म देंगे, एक ही प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपके पास डिफरेंट एआई टूल्स होंगे और आपको बेसिकली आसान अल्फाज में एम्पावर करेंगे। तो बेसिकली मैडम ने तो आपको बता दिया टैग क्या है, क्या करता है और कब से कर रहा है, ये सारी डिटेल्स बता दी हैं। हमारा सिर्फ जो पर्पस है और जो पैशन है वो है कि एक जो स्टूडेंट है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास टैबलेट्स हैं, फोन है, स्क्रीन्स हैं, बट हम क्लास अभी भी 1980s वाली जो है ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, चौक और मार्कर्स को यूटिलाइज करते हुए कंटेंट जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसको फोकस किया हुआ है हमने। रोड लर्निंग को अब हमें बाय बाय करना है, क्योंकि इशू यहाँ पे आता है कि जो स्टूडेंट है वो अब नहीं पढ़ना चाहता इस लेवल पे, जिसकी और आप हम समझते हैं कि शायद वो वीक है, शायद उसका दिमाग इस लेवल का नहीं है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर तो हमें उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हम उसको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे लेके जाते हैं। तो टैक चाहता है कि जो दूसरे स्कूल्स के टीचर्स हैं जो एक अच्छे प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी एम्पावर करें। उनको एम्पावर करने के लिए okay, there's some disturbance in your voice. Okay, ठीक है, let me check. Okay, ठीक है। अब टैक का जो इस वक्त आज जो टैक आपके साथ करेगा वो बेसिकली एक ब्रिज बनेगा एक टीचर और स्टूडेंट के लिए, और वो ट्रेडिशनल क्लासरूम को आज बेसिकली डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट में तब्दील कर देगा। हम बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी टीचर की जगह नहीं लेती, टीचर को एम्पावर करती है। हम आज आपको एम्पावर ही करने आए। हमारे पास दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक पेड है और एक जो है फ्री है आप सबके लिए, और वो जो फ्री है आज उसी की डेमोन्स्ट्रेशन में आपको कंप्लीट दूंगा, किस तरह से आप एआई को यूज करते हुए सिंगल वन विंडो सॉल्यूशन में आपको मैं हर एक एआई टूल प्रोवाइड कर दूंगा जो टैक ने अपने हाउस में बैठकर और ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया। हमारी पूरी टीम ने इसको पूरी मेहनत के साथ ये कंटेंट बनाया कि हम टीचर्स को बेसिकली एम्पावर कर सकें। उसी के लिए हमने जो बड़ी मेहनत की है और हम चाहते हैं कि वो मेहनत हम आपके साथ भी शेयर करें। अब टीचर अगर ट्रेन और इक्विप्ड होगा तो हर स्टूडेंट तक नॉलेज का बेस्ट वर्जन पहुंच सकता है। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आप लोग से, और प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोग की स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। That is basically a tech browser. Tech browser basically is a complete content hub, but that is basically a paid version. ये पेड वर्जन है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे चीजें होंगी जो फ्री प्रोवाइड कर दूंगा।
तो जहां जहां मैं आपको फ्री दूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो जो पेड होगा वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा साथ साथ। इस वक्त आपके सामने टैग ब्राउजर है, और टैग ब्राउजर के अंदर आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए सारा कंटेंट अवेलेबल है, फ्रॉम प्री स्कूल टू ग्रेड 12। इट डजेंट मैटर कि आपके पास कौन सा पब्लिशर है, आप कौन से बोर्ड से हैं, आप आप कैम्ब्रिज है आपका, खान बोर्ड है आपका, फेडरल बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो टॉपिक स्पेसिफिक है। आपको अगर स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाना है, आपको कोई भी कंटेंट डिलीवर करना है, तो वो सारा कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। कोर्स सब्जेक्ट्स पे अभी हमने काम किया हुआ है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, प्री स्कूल, सारा कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो मैं दिखाऊंगा इस कंटेंट के अंदर तो यही अवेलेबल है, लेकिन मैं बेसिकली आज आप लोग को ये कंटेंट दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं आज आपको एम्पावर करने के लिए आया हूँ, और वो एम्पावर है हमारा AI स्कूल। AI स्कूल इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन हाउ इट्स डाउनलोड, हाउ इट्स वर्क, ये सब चीजें वन बाय वन हम आज चीजें समझते रहेंगे। तो बेसिकली ये इन सारे बॉक्सेस के अंदर आपके पास एक बॉक्स है AI स्कूल, जिसको हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने टीचर्स के जो स्मार्ट टूल्स हैं वो आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। और यकीन माने आहिस्ता आहिस्ता मैं इस लेवल पे चला जाऊंगा क्या आप भी खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी हम शॉर्ट बेसिक स्टार्ट फीचर लेते हैं, जो हमारे बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं उसको लेकर हम आपको तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल लेसन प्लान, और लेसन प्लान कैसे काम करता है, वर्कशीट कैसे काम करती है, पैराग्राफ टू वर्कशीट कैसे काम करती है। बेसिकली पैराग्राफ इस मींस दैट कि आप अपनी बुक का कंटेंट अगर यहाँ पे अपलोड कर दें तो अकॉर्डिंग टू डेट योर पैराग्राफ वो आपको प्रोवाइड कर देगा वर्कशीट्स, और इस लाइक MCQ, ये सारा कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है रीडिंग असिस्टेंट। रीडिंग असिस्टेंट क्या है? दैट इज द बेस्ट AI टूल्स। हम जब हम छोटे थे और हम स्कूल में रीडिंग करते थे तो वो क्राइटेरिया क्या होता था, जो आज भी है। टीचर हमें खड़ा कर दी थी, हम रीड करते थे, क्लास में शोर भी हो रहा है, पिन ड्रॉप भी साइलेंस है, लेकिन जो टीचर के आवाज कान तक पहुंच गई आवाज हमारी तो उसने प्रोनाउंसिएशन सही कर दी, अदरवाइज जो नहीं सम आवाज आई तो वो स्किप कर दिया। लेकिन ये AI टूल आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी एक्यूरेसी, हर चीज को नोट करता है और आपकी प्रॉपर असेसमेंट करता है। ये कंप्लीटली फ्री है आपके लिए, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, ये काम उर्दू में भी करता है। फिर उसके बाद हमारा नया एडवांस जो सेशन है वो है 5E लेसन प्लान, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 5E लेसन प्लान क्या होता है, उसमें कहाँ वर्किंग कैसे होती है। उसके बाद आपके पास लैब एक्टिविटीज़ हैं, लैब एक्टिविटीज़ कैसे डिज़ाइन करनी है, किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमने टाइम सेगमेंट रखा था इसके अंदर हम इसको फुलफिल कर लें। उसके बाद राइम्स हैं। राइम्स अब भी हम जो है उसी पुराने फॉर्मेट के ऊपर हैं, जो पुरानी हमारे पास राइम्स चल रही हैं हम उसी राइम्स को लेकर जो है कंटिन्यू करते हैं। कभी पुरानी ले लेते हैं, कभी नहीं ले लेते हैं, मतलब इसी तरह से हमारी जो है वो राइम्स चल रही हैं। अब आपने सिंपल यहाँ पर एक टॉपिक देना है, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक आपको ये राइम्स बना के दे देगा। मैं ये भी जानता हूँ कि टीचर्स के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है राइम्स डिज़ाइन करना, और मैं ये भी जानता हूँ कि टीचर्स डेफिनेटली इतने बर्डनाइज लेवल के अंदर राइम्स को भी डिज़ाइन नहीं कर सकती, और अगर कर ले तो वाकई उसको सलाम है। तो इसी के साथ सिनेरियो असाइनमेंट्स कैसे काम करते हैं, क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, डायलॉग्स, मैचिंग एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें मैं अभी आपके साथ सब शेयर करूंगा। लेकिन अभी सिंपल आप लोग को अभी ब्रीफ कर रहा हूँ कि मैं अभी दिखाने वाला क्या हूँ। फिर उसी के साथ आपके पास जो इस वक्त रीडिंग
इसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्विजेस हैं, स्टडी पैक है, पावर पॉइंट है, वीडियो जनरेटर है, और स्टूडेंट के भी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई भी चीज़, कोई भी रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट की होगी, वो सब कुछ ये स्टूडेंट हेल्पर सॉल्व करेगा। इसी के साथ स्टूडेंट की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और उर्दू प्रोफिशिएंसी असेसमेंट यही सॉफ्टवेयर करेगा। ये और एआई ट्यूटर क्या है, इंग्लिश एआई ट्यूटर क्या है, ग्रामर विज क्या है, ये सब मैं अभी आप लोग के साथ वन बाय वन शेयर करना शुरू करूंगा। और इसको अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेसन प्लान। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। टीचर माशाल्लाह हमारा जो है वो एजुकेशनिस्ट भी है और वो कैपेबल भी है। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए जो मसला होता है, अगर ये काम चैट जीपीटी भी करता है, लेकिन मसला क्या आता है, प्रॉम्प्ट। इशू क्या है, प्रॉम्प्ट। आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर हमने आपके लिए जो आसानी कर दी है वो ये है कि आपने अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको ये फिल करेगा अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड। यानी अगर आप कोई भी टॉपिक प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो आपको ये अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड ये प्रॉपर वैल्यूएट करके लेसन प्लान देगा। अब जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट द ग्रेड 5, और ग्रेड 5 के अंदर सब्जेक्ट साइंस को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल अगर क्या लिखें, सोलर सिस्टम, और यहाँ पे हम टॉपिक मैंने उसको बता दिया कि सोलर सिस्टम है। मैंने ब्रैकेट में बता दिया सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट मुझे सिर्फ डिस्क्राइब करना है। सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स के लिए मैंने उसको ब्रैकेट में डिफाइन किया है, लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर मुझे जो ब्रीफ करना है वो सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट है। उसके लिए हम इसको जनरेट करते हैं। तो देखते हैं क्या हमारे पास व्यू आता है। तो यहाँ पे मैं आसान हो गया, मेरे लिए काम ये आसान हो गया कि मुझे इसको ग्रेड नहीं बताना, मुझे इसको कोई खास तौर पे कोई अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देना, मुझे सिंपल अकॉर्डिंग टू साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि जब मैंने साइंस ले लिया तो अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज वो मुझे कंप्लीट लेसन प्लान देगा, सिर्फ सोलर सिस्टम का, एक्स्ट्रा कोई और बात नहीं करेगा। और रेलेवेंटली ये होगा कि वो हमें पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए सोलर सिस्टम की सीक्वेंस जैसे हमने बात की थी, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड लेसन द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। क्योंकि हमने सीक्वेंस की बात की है तो वो सिर्फ 8 प्लैनेट्स की बात करेगा। अगर हम ऑर्बिट वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो ऑर्बिट वेलोसिटी की बात करेगा। अगर हम गैलेक्सी की बात करेंगे तो वो गैलेक्सी की बात करेगा। तो हम जो भी उसको टॉपिक देंगे अकॉर्डिंग टू दैट। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारे टॉपिक्स दे दूं तो ब्रैकेट वाइज आपको सिंपल उसको टॉपिक्स बताने हैं, लेकिन जो आपका चैप्टर है सोलर सिस्टम उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उसको ब्रैकेट में फिलअप कर देना है। तो बस, और उसके अकॉर्डिंग ग्रेड 5 को लेकर ये आपको एक कंटेंट जनरेट कर देगा। इसी तरह से व्हाट मटेरियल नीड, आपको नीड क्या होगी मटेरियल की, बेसिकली दिस इज द स्टीम। व्हाट इज स्टीम? साइंस को, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मटेरियल, मैथमेटिक्स को एड ऑन करता है स्टीम। स्टीम बेसिकली आप लोग स्कूल लेवल में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इशू इज दैट कि वो आपकी बुक के साथ अलाइन नहीं है। यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया एक कॉन्सेप्ट। अब जस्ट लाइक वी टॉकिंग अबाउट कि मैं अगर थोड़ा स्क्रॉल बंद करूं इसको, और सॉरी टेक ब्राउजर ओपन करते हैं। बेसिक जो मैंने अभी आपको टेक ब्राउजर दिखाया था, टेक ब्राउजर बेसिकली आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, वीडियोस नहीं है, एनिमेशन नहीं है। तो अब आपके पास ये मटेरियल्स अवेलेबल है, और अकॉर्डिंग टू दैट मटेरियल्स आप एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इस से कोई चीज़ें आपने डिज़ाइन करनी है जो ये आपको खुद एक्सप्लेन करेगा वन बाय वन। और इसके साथ आपने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपने बच्चों की लर्निंग करानी है बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो स्ट्रीम आपको ये फिलअप करता है। उसके बाद लेसन की आपकी टाइम अलॉटमेंट आपको प्रोवाइड कर दी कि आपने 10 मिनट जो है वो इंट्रोडक्शन देना है, इंगेजमेंट रखनी है,
फिर उसके बाद 15 मिनट आपकी एक इंट्रोडक्शन होगी प्लैनेट के हिसाब से, फिर आपकी 20 मिनट्स मेन एक्टिविटी होगी प्लैनेट सीक्वेंस गेम, जो सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। हमने आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं की, ये ही सॉफ्टवेयर आपको ये सीक्वेंस बना के दे रहा है, और आप स्टूडेंट्स को इंगेज करते हुए, अगर मैं बड़े स्कूलों की बात करूं तो वो बड़े स्कूल जो आपके हैं, जो एक बड़ी फीस मार्च लेते हैं, उनके पास ये चीजें पहले से वो डिजाइन करते हैं, टीचर्स को स्टूडेंट्स को इंगेज करते हुए वो एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं कि रोट लर्निंग को स्विच कर सकें डिजिटल लर्निंग या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऊपर। तो वही चीज हमने यहाँ आपको प्रोवाइड की है, और आप लोग के लिए ये कंटेंट बनाना, आई नो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, उसके लिए हमने आपके लिए आसानी की कि ये सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल गई, क्योंकि हमें आपकी जो तकलीफें, जो बर्डनाइजेशन है, उसका हमें बखूबी अंदाजा है, उसको करते हुए हमने आपके लिए कंटेंट बनाया। और ऐसा नहीं है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया वही अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है और वर्ड की फाइल, चाहे आप इसको कॉपी कर लें, चाहे आप इसको डाउनलोड कर लें। वर्ड की फाइल जब आपके पास आएगी तो वो एडिटेबल है, आप इसमें से कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि 100% जो है सिक्योर सीक्वेंस बन रही हो आपकी बुक से, कहीं ना कहीं मिनिमम चेंजेस होंगी, जो आप चेंजेस तो आप 2-4 मिनट में कर सकते हो, लेकिन लेसन प्लान अगर डिजाइन करने जाओगे तो पूरा दिन आपको रिक्वायर्ड है, वो 2-4 मिनट का काम नहीं है। तो 2-4 मिनट का जो काम है वो एडिटेबल है, आप उसको कर सकते हो। बट मसला मेन जो है ना वो सिर्फ ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज जब आप करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जब उसको इस्तेमाल करने जाते हो तो आपके लिए तकलीफ ये होती है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। लेकिन एक दफा जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आप ही के काम को, ये जो आप पूरा दिन लगाते हो, ये वही काम आपको 5 मिनट में करके देता है। और जहां आपके लिए चैट जीपीटी और ये मुश्किल है, प्रॉम्प्ट देना डिफिकल्ट है, वो आपके लिए सिर्फ इतना काम आसान कर देता है कि आपको प्रॉम्प्ट देने की यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं करनी। इसी के साथ अब बात करते हैं हम वर्कशीट्स। वर्कशीट सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे आपने वही एग्जैक्ट ग्रेड 5 साइंस और अगेन सोलर सिस्टम, आपने यहाँ पे सोलर सिस्टम लिखा और जनरेट कर ली वर्कशीट्स। यानी आपके जो आपको वर्कशीट डिजाइन, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो आपकी बुक में वर्कशीट्स हैं और जो यहाँ पर हैं, ये थोड़ी सी अनसीन होंगी आपके टॉपिक के हिसाब से। जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सीक्वेंस क्या है, और वो जो मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया था वो सीक्वेंस आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो वही आपने यहाँ पे सीक्वेंस लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू योर वर्कशीट अलाइन हो जाएगी आपके टॉपिक के साथ, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम है। तो ये सारी वर्कशीट आपको प्रोवाइड करता है। और अगर थोड़ा सा, मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेड वर्जन पे जाएंगे तो पेड वर्जन के अंदर आपके लिए आसानी ये है कि वहाँ पे तो आपने सिंपल इमेज या पीडीएफ अपलोड करनी है अपनी बुक की, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कंटेंट भी बना के दे देगा। लेकिन हम उस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, फिंदा ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज हैं। आपने सिंपल टॉपिक डिफाइन करना है, और टॉपिक डिफाइन करते ही आपको ये प्रॉपर प्रोवाइड कर देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं व्हाट इज 5E लेसन प्लान। 5E लेसन प्लान, थोड़ा सा लेसन प्लान को एडवांस किया गया है, और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और मैं यहाँ पे पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। ओके, इसको क्लिक करते हैं।
और ये 5E लेसन प्लान है क्या? बेसिकली सेम सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे वही स्टैम्प मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जो खास बात है 5E, व्हाट इज 5E? बेसिकली अलॉट टाइम किया गया है एंगेजमेंट, E for engagement 1, explore is 2, explain is 3, elaborate 4, and 5 is evaluate. Means that is 5E lesson plan. ये आपको provide करता है. The number 1 is engagement. Engagement के लिए आपको इसने बता दिया, begin by asking students what they know about space and the planets. Prompt them. Question like, what is over there in space beside Earth? अब यहां आप स्टूडेंट को पहले इंगेज कर रहे हो, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हो. तो ये सवाल पहले आपने सवाल पूछे, एंगेजमेंट. आपके पास जो इशू है क्लास के अंदर वो डिसिप्लिन का है, और डिसिप्लिन को इंगेज मैनेज करने के लिए आपको स्टूडेंट्स को इंगेज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में जाते ही आज जब आपने बुक्स और कॉपीज ओपन करवाई और आपको आज टॉपिक एक्सप्लेन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंगेज योर स्टूडेंट. डायरेक्ट जाके अगर आप बुक ओपन करते हो और कंटेंट शुरू कर देते हो, रीडिंग करवाते हो, स्टूडेंट एंगेज नहीं होता, और वो डिफिकल्टी होती है आप लोग के लिए, वो मसला बनता है आपके लिए. उसी के लिए आपके लिए हमने पहले सेगमेंट रखा एंगेजमेंट का, और इसी के साथ नेक्स्ट आपके लिए है एक्सप्लोर. डिवाइड students into small group, 3 or 4 per group. Each group will receive a set of 8 index cards. Each card, write the name planet, like, ठीक है, do not write the sun on this card, as the focus is on the planets order. हमारा फोकस सिर्फ planets के ऑर्डर पे होगा. Instruct each group to discuss and try to arrange the planet cards in the order. यानी हम बच्चों को, जैसे हमने टॉपिक मैंने आपको सीक्वेंस का बताया, तो ये सिर्फ सीक्वेंस पे बात कर रहा है, सीक्वेंस से बात कर रहा है, और सीक्वेंस से ही आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, तो सीक्वेंस के अगेंस्ट अच्छा फर्दर और कोई टॉपिक पे बात नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको प्रॉम्प्ट ही सीक्वेंस का दिया. इसी तरह से अब जब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और अगर ये आपकी टेक्स्ट ब्राउजर आपके पास है और अब आपने एक्सप्लेन करना है, तो टेक्स्ट ब्राउजर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो मैं साइंस के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, और कंटेंट के अंदर हम जब यहाँ पे सोलर सिस्टम लिखते हैं, तो सिर्फ सोलर के अकॉर्डिंग जितनी भी एनिमेशन हमारे पास होंगी वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है. और अब हम जो भी कंटेंट लेना चाहें, जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम, पहले हम बच्चों को व्यू करवाना चाहते हैं सोलर सिस्टम कैसे काम का है, कैसे वर्क करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टूडेंट को दिखाना चाह रहे हैं. तो एक हमारे पास एक एनिमेशन अवेलेबल है जो 3D मॉडल में है. अच्छा चलो, टेक टाइम ले रही तो हम दूसरी खोल लेते हैं. Okay, that is the sequence of a planets. That is this. ये बिल्कुल भी आप मत समझिएगा कि ये वीडियो है और मैं भी प्ले करूंगा और ये रन करना शुरू करेगी, बिल्कुल भी नहीं. This is a formative assessment. और जब आप बच्चों को सीक्वेंस बताने जाएंगी तो आपके पास ये बॉक्सेस हैं, और इन बॉक्सेस के अंदर आपने बच्चों को डिफाइन करना है कि सीक्वेंस क्या है. तो इस सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मर्क्यूरी को हम ड्रैग करते हैं, और मेरे हाथ में इस वक्त मेरे माउस के कर्सर के साथ ये मर्क्यूरी अवेलेबल है और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं. अब जब हम स्टूडेंट को इंगेज करते हैं और एक हमने ड्रैग कर दिया और हर स्टूडेंट को 1 by 1 कॉल करें और कहें कि प्लीज ड्रैग द करेक्ट पोजीशन प्लैनेट, तो कैसे? तो अर्थ को वो ड्रैग करता है, तो
आपके साथ स्टूडेंट की इंगेजमेंट बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपको समझाने का एक्सप्लेनेशन जो है, ये रिव्यू है, डिस्कशन है, और आप बच्चों को एंगेज कर रहे हो, स्टूडेंट्स को एंगेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ये आपको 5E लेसन प्लान प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास ये ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं भी हैं तो भी मैंने आपको कार्ड्स की सीक्वेंस बता दी है कि कार्ड्स की एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। तो दैट इज 5E लेसन प्लान। और इंगेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट 5E लेसन प्लान है। आपको इंगेजमेंट के लिए आपको खुद से कोई चीज़ नहीं सोचनी, सब कुछ 5E लेसन प्लान जनरेट करेगा। काइंडली प्लीज कंफर्म, अच्छा जिसके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, प्लीज लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लें, तो शायद आपके पास इंटरनेट का कोई इशू हो। ओके, अब बात करते हैं 5E लेसन प्लान। उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रीडिंग कोच के उस पे कि अब व्हाट इज रीडिंग कोच। और रीडिंग कोच हमारे पास, इंग्लिश पे चलते हैं, उर्दू तो हम नॉर्मली बोलते रहते हैं। और लेवल्स यहाँ पे क्राइटेरिया, लेवल व्हाट इज मीन और लेवल, मैंने, अच्छा कोई स्क्रीन शेयर का इशू आ रहा है तो प्लीज कंफर्म कीजिए, मैं दोबारा रीशेयर कर देता हूँ स्क्रीन को। और ओके, 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 मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। और शायद कोई शेयर स्क्रीन प्लीज। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। बेसिकली कुछ इंटरनेट का इशू आया होगा जिसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ होगा। और अब चलते हैं वापस 5E लेसन प्लान। ओके, आप प्लीज कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब नाउ वी टॉक अबाउट द रीडिंग कोच। रीडिंग कोच के पास जाते हैं और रीडिंग कोच के साथ हम असेसमेंट करते हैं। व्हाट इज रीडिंग कोच। रीडिंग कोच हमारी असेसमेंट कैसे कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ओके, अब रीडिंग कोच के अंदर बेसिकली ग्रेड्स डिजाइन है, ग्रेड डिफाइन करता है। मींस अगर मैं जितना अपर लेवल जाऊंगा ग्रेड में, उतना ही डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करते हुए मेरे लिए ये पैराग्राफ जनरेट करेगा। तो अब यहाँ पे हम लेवल को डिफाइन करेंगे। अगर ग्रेड 8 पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं टॉपिक दूं मैंगो, एक ग्रेड 8 के ऊपर मैंने जनरेट किया। पहले मैं आपको दिखाऊं कि बेसिकली डिफिकल्टी क्या है। अब ये एक पैराग्राफ मेरे सामने आ रहा है जो ग्रेड 8 लेवल के लिए उसने डिजाइन किया है, ठीक है। जहां पे इसने कई सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करते हुए मेरे लिए एक पैराग्राफ जनरेट किया है, ठीक है। लेकिन यही टॉपिक अगर मैं ग्रेड 1 के लिए क्रिएट करूं तो यहां अब ये कंटेंट मेरे लिए काफी हद तक आसान कर देगा। तो यहाँ पे आपके लिए बेसिकली आसानी है कि आप लेवल कंसिडर करते हुए स्टूडेंट्स को पैराग्राफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितना अपर ग्रेड होगा उतना ही डिफिकल्ट पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ग्रेड 1 की बात करते हैं। ग्रेड 1 के अंदर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग द पैसेज अलाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हर स्टूडेंट को अपने साथ एंगेज करना है और उनको कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने लिसन करना है इसको। तो हम मे बी शायद आप लोग को वॉइस ना आए, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शायद वॉइस आई हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिसनिंग को क्लिक कर दिया था तो ये इन्होंने वर्ड्स को बोलना शुरू कर दिया था। सबसे पहले हम स्टूडेंट को सुनाते हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन हो कैसे रही है, और उसके बाद जब हम स्टूडेंट को वन बाय वन तो नहीं करते हम क्लास में इसको, नो सर नहीं आया, नो इशू, इज कम्प्लीटली फ्री फॉर यू, और मैं आपको बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे हो रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। या आपने खुद भी अपने घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है। और आप फिर इसको अपने घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने स्कूल में खुद अप्लाई कीजिएगा, और हमें अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि किस तरह से बेसिकली काम करेगा ये, ठीक है। थैंक यू। स्पीकर लाउड किया था ना लिसनिंग वाला, तो वो वॉइस नहीं, उस पे कह रहा हूँ। ओके, अब स्टार्ट माइक, और मैं अब खुद इसको रीड करूंगा और ये मुझे इवैल्यूएट करेगा कि मेरी प्रोनाउंसिएशन किस लेवल पर है, ठीक है। उसके साथ अगर मैं चाहूं तो इस पैराग्राफ के अंदर वर्ब कौन से हैं उसको हाईलाइट करके बताएगा, इसमें हम हाईलाइट करें एडजेक्टिव कौन से हैं वो हाईलाइट करके बताएगा, नाउन कौन से हैं वो हाईलाइट करके बताएगा। तो इस तरह से हम स्टूडेंट को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ द स्पीच के अकॉर्डिंग। दैट इज फ्री कंप्लीटली फॉर यू। आपको कहीं दूसरे यूआरएल्स पे नहीं जाना, आपको सिंपल एआई स्कूल के अंदर हर एआई सॉफ्ट प्रॉम्प्ट दे दिया, आपको सिर्फ उस बॉक्स पे क्लिक करना है, सिर्फ टॉपिक बताना है, और वो आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको फुलफिल करेगा, ठीक है। उसके साथ जब रीडिंग कोच पे जाएंगे तो रीडिंग कोच आपके सामने यहाँ असिस्ट कर रहा है, और आपको ये असिस्ट पार्ट ऑफ द स्पीच गाइड करेगा, सेंटेंस बना जनरेट करके देगा, और जो अभी मैं लाइव माइक ऑन करके स्क्रिप्ट पढ़ूंगा वो भी रिकग्नाइज करके मुझे इवैल्यूएट करेगा। ऐसे कई सारे डिफरेंट पोर्टल्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे एआई नहीं है, देखिए मसला दैट इज पेड, ठीक है। तो जो फ्री है वहां से तो मैं आपको एम्पावर करूं, और उसको वहां इसलिए मैंने ये आपको फ्री दिया। और सेकंड मेन जो मैं इस वक्त आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोग को माइक की एक्सेस इसलिए दिए हैं कि आप लोग मुझसे सवाल करें। अभी नहीं कीजिएगा प्लीज, जो सेशन है उसी में डिस्कस होगा, तो प्लीज बराए मेहरबानी। मैं चाहता तो माइक्स ऑफ रख सकता था, ये पहले से ही हम अलाउ कर देते तो आप सबके पास माइक व्यू नहीं होते, ठीक है। तो अभी मैंने अगर माइक दिया है तो ये जब हम बैठेंगे बात करने तो वन बाय वन हम आपके सवालात भी लेंगे, ठीक है। तो प्लीज मुझे क्योंकि आपके माइक ऑन होने से मेरा जो रिदम है वो टूट जाता है। थैंक यू। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं माइक की, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और इवैल्यूएट करेगा इस वक्त एआई कि मेरी, और इस वक्त बिल्कुल न्यू सेगमेंट है ये, स्कूलों में जो यूटिलाइज कर रहे हैं आप लोग, और जो रीडिंग का सेगमेंट है, उम्मीद करता हूं कि इसके बाद हम इस कुछ चीज को चेंज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ सुपर यमी फ्रूट कॉल्ड अ मैंगो। Mangoes are like sunshine. You can eat. They grow on big trees that have green leaves and sometimes white flowers. When mangoes are growing, they are small and green, but as they get bigger and riper, they turn bright yellow or a beautiful orange color. Some mangoes are also red and green. When you touch a ripe mango, it feels a little soft and smell really sweet, like candy or flowers. हाँ, मेरे साथ मैं सिर्फ इतना ही रीड कर सकता, उसके बाद मैं थक गया। तो जो मैंने पढ़ा, जो भी मैंने स्क्रिप्ट रीड किया, वो सब कुछ यहाँ पर व्यू हो गया। और अभी मैंने अपना रिजल्ट नहीं व्यू किया,
अभी जो भी मैंने रीड किया वो सब कुछ नीचे आ गया, मैं खुद भी इसको असिस्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग को बताने के लिए कि ये कितना एफिशिएंट है और आप खुद कितना जज कर सकते हो इन चीजों को, ये सब चीज दिखाने के लिए। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की, कि हम मेरा रिजल्ट क्या था, मेरी प्रोनाउंसिएशन क्या थी, क्योंकि मैंने कंप्लीट पैराग्राफ नहीं पढ़ा इसलिए वो कंप्लीट रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड आया। मेरी एक्यूरेसी तो अच्छी थी, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने एक तो मेरी सब रिस्पॉन्ड, लेकिन मैंने कंप्लीट रीड नहीं किया इसको, तो नीड मोर इम्प्रूवमेंट दे दिया उसने। लेकिन अगर शायद मैं पूरा रीड कर ले तो शायद एक्सीलेंट आ जाता मेरा। तो और जो वर्ड्स मैंने सही एक्सप्लेन नहीं किए वो भी अच्छा, बेसिकली क्यों ये हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मार्क है, क्या कहते हैं उसको हम, मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ कॉमा अवेलेबल है, मुझे कॉमा भी बोलने चाहिए थे, जिसकी वजह से इन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये एक आपके लिए अवेलेबल है रीडिंग असेसमेंट, आप स्टूडेंट की रीडिंग असेसमेंट ले सकते हैं। और ये हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है और कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन। एक्सप्लेनेशन मार्क, यस, लेकिन वो नहीं, इसको इन सब चीजों को भी कुछ कहते हैं ना, मैं वो तो मुझे पता एक्सप्लेनेशन मार्क है, अंदर जो उसको डीप पंचुएशंस, यस यस, पंचुएशन, ये वर्ड में मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी, थैंक यू वेरी मच। ये आप लोग भी गड़बड़ करते हैं बोर्ड पे, बच्चे आपको बताते हैं, इसलिए आज आप मुझे गाइड कर रहे हैं। ठीक है, चले, अब आपको मैंने रीडिंग असेसमेंट दिखा दी, और इसी तरह से रीडिंग, और इसी तरह सेम उर्दू का भी सेम क्राइटेरिया ऐसा ही है, और 5 लेसन प्लान आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं राइम्स की। राइम्स के लिए बेसिकली हम जाते हैं वही ओल्ड और वो पुराने राइम्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड, और हम मेरे ख्याल में मैक्स ज्यादा ऊपर नहीं जाते, और इसमें इंग्लिश उर्दू दोनों अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम कोई भी टॉपिक देते हैं, चलें आप कोई टॉपिक दें, और जिसका सबसे अच्छा होगा मैं वो यहाँ पे, तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या टॉपिक देना चाहिए मुझे राइम्स के लिए, ग्रेड 3 के लिए, प्लीज। ये पोयम वही रेन रेन गो अवे, कोई ऐसा जो शायद आप समझते हैं कि इससे राइम ना बनती हो। सीजन और कॉमन है। Sky is so beautiful. Moonlight. Moonlight, I love this. Moonlight, ठीक है। और मूनलाइट को हम लेके चलो, कंप्यूटर राइम क्या बनी कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे अजीब ही कुछ बन जाएगा कंप्यूटर के ऊपर। मूनलाइट के ऊपर चले हम, देखते हैं। ओके, देखें, सिंपल मूनलाइट यहाँ पे मेंशन किया, और मूनलाइट के अकॉर्डिंग इसने मुझे एक शॉर्ट राइम प्रोवाइड कर दी। आई उम्मीद करता हूँ कि आप सबको व्यू हो रहा होगा। The moonbeams start to gleam, a soft and silver stream. They paint the sleepy town without a single sound. तो that is unique। और अब आपके लिए राइम्स, और जहाँ किसी ने अभी कहा था कि प्री प्राइमरी के लिए, तो प्री प्राइमरी के लिए भी आप इस चीज़ पे सजेस्ट कर सकते हो कि ये पोएम्स आपके लिए यूटिलाइज हो सकती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोग को ज़रूर हर क्लास के लिए कोशिश करूंगा कि लेवल पे लेके जाऊं, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट के एंड से बात करना चाहें तो मैं सोच रहा हूं कि उसका वेबिनार एक अलग टाइम और डेट पे रखें, क्योंकि स्टूडेंट के पास एआई टूल्स क्या होने चाहिए हमने वो भी डिज़ाइन कर लिए हैं। उसको चैट जीपीटी नहीं देना, उसको जेमिनाई नहीं देना, उसको क्या देना चाहिए, उसकी कैसे असेसमेंट होनी चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ एक नेक्स्ट वेबिनार में हम शेयर करेंगे, और आपने देखना है कि वो कैसे काम करता है। तो बेसिकली राइम के अंदर आप कोई भी टॉपिक देंगे, अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये प्रोवाइड कर देगा
आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। और प्लीज अब चेंज करें चीजों को। अब लैब एक्टिविटी व्हाट, जो बड़ी क्लासेस हैं, जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 8 से भी बात कर सकते हैं, उसके अंदर साइंस एक्टिविटी। और अगर हम बात करें साइंस, यानी हम साइंस में ग्रेड 3 की बात करें, 4 की बात करें, तो साइंस में भी लैब एक्टिविटीज हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं थोड़ी बड़ी क्लासेस की, और 9 और मैट्रिक पे चलते हैं। और यहाँ पे हम बायोलॉजी ले लें और किडनी फिल्ट्रेशन ले लें। अकॉर्डिंग टू दैट हमें एक लैब एक्टिविटी ये प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, मुझे लगा था शायद ये कोई मुर्गी या मेंढक कुछ ऐसी चीज हमें देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने कुछ मटेरियल्स हमें डिफाइन किए हैं, और ये मटेरियल्स हमें अरेंज करने हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। और किडनी फिल्ट्रेशन के हवाले से हमें एक लैब एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी इसने, जो बेसिकली आपने सोचना है, समझना है, वो सब चीजें हमने यहाँ पे खत्म कर दी। और ये खुद आपको एक डिजाइन करके दे देगा। यहाँ पे आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना, प्रॉम्प्ट देने जाएंगे तो डेफिनेटली, अच्छा ठीक है, चलें उर्दू की भी एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। और ये देखें, आपके पास प्रोसीजर प्रॉपर प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, डाटा कलेक्शन क्या होगी, सब कुछ आपके सामने यहाँ अवेलेबल है रिगार्डिंग किडनी फिल्ट्रेशन के हवाले से। और ये सारी एक्टिविटी, व्हाट अबाउट मैथ्स, ओके हम मैथ्स पे भी चलते हैं, दिखाता हूँ। मतलब सबर, अभी हर चीज अगर मैं दिखा दी तो मजा क्या है एक साथ। देखिए, मैथ्स का एक मेजर इशू ये है कि उसके अंदर जो लैब है ना, लाइब्रेरी, मैथ्स की लाइब्रेरी, वो एआई इंटीग्रेशन नहीं है अभी उसके अंदर। और उसमें रूट्स, स्क्वायर रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ ठीक है, लेकिन जो मैं इस वक्त मैथ्स में आपको फुलफिल कर सकता हूँ, वो ज़रूर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके अंदर हमें जो मसला आ रहा है ना, वो लाइब्रेरी का आ रहा है। उर्दू की भी लाइब्रेरी पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, उर्दू को भी हमने बनाया, मेहनत की, लेकिन उसकी लाइब्रेरी हमें कहीं ना कहीं से मिल गई। लेकिन मैथ्स के अंदर इशू है, एक तो कीबोर्ड, कीबोर्ड के अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंबल्स नहीं मिलते, और ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती इस वजह से। देखिए, ग्रेड 1 के लिए मैंने जैसे आपको एक्टिविटीज डिफाइन की हैं, और ये एक्टिविटीज यूज हो सकती हैं, लेकिन ग्रेड 1 के अकॉर्डिंग, जैसे आप ग्रेड 1 सर्च करोगे लैब एक्टिविटी पे नहीं, लेसन प्लान के ऊपर, और 5 ही लेसन प्लान के ऊपर करोगे, तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग ग्रेड 1 के देगा। चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ्स हो, आप खुद एक्सप्लोर करो। देखो, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं, बनाया मैंने, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, काम कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन तो टीचर करेगा ना। तो टीचर जब तक इसको परफॉर्म नहीं करेगा, मुझे कैसे पता चलेगा ये कितना परफेक्ट है। आप बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की असेसमेंट करोगे, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जो मैं आपको दे रहा हूं यहीं पर है, इसको मैं मजीद रिफाइन करूंगा आपकी मेहनत से। आप जिस तरह से हमें गाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेट हम उसको सिनेरियोस को, यानी उसके बग्स बग्स तो नहीं है, उसके सिनेरियो और प्रॉम्प्ट को हम मजीद बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। लेकिन ये मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ये डाउनलोड कैसे होगा, काम कैसे करेगा, ये सब कुछ आपको गाइड करूंगा, पूरा आपके सामने इंस्टॉल करके दिखाऊंगा दोबारा से, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सिनेरियो असाइनमेंट्स। अब व्हाट इज सिनेरियो असाइनमेंट्स, इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे अब आपके पास मैथ्स है यहाँ पे, लेकिन इशू इज दैट कि मैथ्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं साइंस एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इंग्लिश एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उर्दू कर सकता हूँ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। तो वो आप लोग खुद इसको ज़रा टेस्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कहाँ तक आपके लिए फ्रूटफुल है। तो इसलिए साइंस पे चलते हैं, और एग्जैक्ट सेम अगेन सिनेरियो असाइनमेंट के अंदर
सोलर सिस्टम, क्योंकि हम उसी पे मूव कर रहे हैं तो मैं सोलर सिस्टम पे ही बात करूंगा। हाँ हाँ, मैं, आप डोंट वरी अबाउट दिस, मैं आपको उर्दू जरूर दिखाऊंगा। चलें आज यहीं पे चलते हैं उर्दू, ठीक है। और उर्दू में हम कायदे आजम ले लें, लेकिन कायदे आजम सिनेरियो बेस्ड थोड़ी होंगे, नहीं नहीं, कोई टॉपिक बताएं उर्दू का आप, जो मेरे लिए इजी हो लिखना। जिन्होंने उर्दू का है, अब मुझे टॉपिक बताएं कि उर्दू में क्या टॉपिक देना चाहिए मुझे सिनेरियो बेस में। ईद का दिन, ओके, मौसम ठीक है, चलें। लेकिन ईद का दिन आज इट्स नॉट अ टॉपिक, ये चैप्टर नहीं है 14 अगस्त। चलें देखते हैं क्या बनता है, मुझे नहीं पता। मैं, अच्छा, वन मोर थिंग, लैंग्वेज के अंदर अब आपके पास सिर्फ इंग्लिश नहीं है, उर्दू भी है, सिंधियों के लिए सिंधी भी है, बलोचियों के लिए बलोची भी है, और पश्तों के लिए पश्तून भी है। तो यहाँ पे आपके पास हर लैंग्वेज प्रोवाइड है। आपने यहाँ पर ये भी प्रॉम्प्ट नहीं देना कि मुझे उर्दू में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे एक जरा वर्ड आया है, मैं इसको जरा वापस बैक करूँ। अच्छा 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 अच्छा। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही ना, ठीक है। ओके, हमारा परचम, और यहाँ मैंने उर्दू सेट कर दी। मुझे प्रॉम्प्ट में ये भी नहीं बताना कि मुझे उर्दू में बना के दो, तो मैंने लैंग्वेज यहाँ जब डिफाइन कर दूंगा तो अकॉर्डिंग टू माई लैंग्वेज हमारा परचम। ओके, अच्छा भाई, मुझे बताया गया है कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अब 10 मिनट के अंदर ये सारे काम मुझे करने हैं, तो 10 मिनट मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो मैंने जैसे कहा है कि आप लोग के पास मैं कंप्लीट एक्सेस देता हूं, और मैं इसको बैक करता हूं। मुझे बहुत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखानी है, और हर चीज़ के ऊपर आपके प्रैक्टिस भी करानी है कि आप ये काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अलग हैं। अब मैं आपके साथ असेसमेंट की बात करता हूं, और वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी असेसमेंट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी असेसमेंट है क्या, उर्दू भी दिखाऊंगा साथ साथ, ठीक है। यहां पर हम सिंपल न्यू स्टूडेंट और यू हैव आईडी, अगर आपकी आईडी है तो यहाँ टाइप कर दें, और अगर आपकी आईडी पहली बार, मतलब आप पहली बार यहाँ पे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर अपना नाम ऐड करना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। मैं आपकी आईडी कैसे जनरेट होगी, क्या होगा, वो सब मैं आपको गाइड करूंगा, चैट बॉक्स देखते रहना। ओके, अब यहाँ पे हम नाम रखते हैं AI, स्टूडेंट नेम इज अ AI ट्रेनर, और ग्रेड सेट कर दिया grade 1, और यहां पर हमने स्कूल नेम दे दिया AI ट्रेनर। हमने अपना शहर डिफाइन कर दिया कराची, और ये डेट तो आज की आज लग गई, और रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट असेसमेंट। ये बेसिकली क्या है, यहां अगर आपको व्यू हो रहा हो तो आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड की गई हैं, चैट बॉक्स में क्या है बताना। टिप्स फॉर बेस्ट रिजल्ट, स्पीक एट अ नॉर्मल पेस। आपने जो भी बोला नॉर्मल पेस में बोलना है, टू फास्ट नहीं और नॉट टू स्लो, ओके। स्पीक लाउड एंड क्लियर, अवॉइड विस्परिंग और मबलिंग, यानी कोई मुझे खुसफुसी आवाजें यहाँ पे नहीं चाहिए, वरना वो रिकग्नाइज सही से नहीं कर पाएगा। फाइंड अ क्वाइट प्लेस, कोई भी ढूंढना तो क्वाइट प्लेस ढूंढना, बैकग्राउंड में नॉइजिंग प्लेस ना आए, क्योंकि इवेल्युएट नहीं कर पाएगा वो। एम क्या है, एम ये है कि 60 to 90 सेकेंड कंटिन्यूसली स्पीच करनी है आपने। हम बच्चे से प्रेजेंटेशन करवाते हैं, हम बच्चों को प्रेजेंटेशन बनाने को कहते हैं और बोलते हैं कि बोर्ड पे आके डिफाइन करो। ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपके स्टूडेंट को प्रॉपर रिकग्नाइज करेगा। कैसे, अब जस्ट लाइक
हम यहाँ पर एक टॉपिक देते हैं, द पावर ऑफ मदर्स लव। हमने एक टॉपिक दिया और ये देखें, ये है आपके स्टूडेंट की आईडी। अगर आप एक कॉपी पेंसिल जब ये असेसमेंट स्टार्ट करें तो ये स्टूडेंट आईडी आपने बच्चों की अपनी नोट डाउन कर लेनी है। ये स्टूडेंट का नेम आ रहा होगा, एआई ट्रेनर, ये उसका ग्रेड डिफाइन हो रहा है और ये उसकी आईडी है। ये नोट डाउन करनी है आपने। और इसी के आगे नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा ही स्टूडेंट से परफॉर्म कराएंगे तो आपके पास ये आईडी होनी चाहिए कि उसकी प्रॉपर एक असेसमेंट बनती रहेगी। अब यहां पर आपको टारगेटेड 60 टू 90 सेकेंड प्रोवाइड कर रहा है। क्लिक टू माइक टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, ये मेरा स्केल है और ये स्केल बेसिकली आपको डिफाइन करेगा कि 90 सेकेंड कब हो रहे हैं, 60 सेकेंड कब हो रहे हैं, और फिर उसके बाद आपकी एनालाइज करेगा स्पीच को। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक डिफाइन किया है और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और नाउ स्टार्ट माय माइक। दिस स्टोरी is a little long but well worth the time to read. The perfectly illustrates not only the amazing power of love, but also the truly inspiring power of touch. When doctors told Caroline is Bister that her tiny premature daughter would die within 20 minutes, she had to prepare herself for the worst. 60 सेकंड तक मैं नहीं जा सका, 40 सेकंड पे क्लोज कर दिया मैंने। और अब इसने मुझे बताया कि ऑडियो जो तुमने रिकॉर्ड की है वो 46 सेकंड की है और उसके अंदर तुमने 100 वर्ड एस्टीमेट यूज किए हैं। टेक एआई विल बी ट्रांसक्राइब योर एग्जैक्ट वर्ड्स ड्यूरिंग एनालाइज। और अब हम एनालाइज करते हैं हमारी स्पीच को, क्या मैंने स्पीच कितनी सही और कितनी गलत बोली है। यानी जो इशू आपको ग्रामर में आता है ना बच्चों को एक्सप्लेनेशन में, वो आपके लिए काफी हद तक रिकग्नाइज कर देगा। ओहो ये क्या हुआ। ओके भाई, तो इसने हमारी प्रॉपर असेसमेंट कर ली और असेसमेंट के दौरान इसने गाइड किया हमें कंपोनेंट स्कोर क्या है। आपने ग्रामर कितनी परसेंटेज रखी, 65। वोकैबुलरी का क्राइटेरिया क्या था, 65। फ्लुएंसी क्या थी, बहुत स्लो थी, 45 थी। और प्रोनाउंसिएशन 55। मेरा जो यूरोपियन स्टैंडर्ड का लेवल है वो B1 था और अगर मैं आइल्स से था तो 4.5 बैंड्स मुझे मिल जाते और टॉफल में 18 आउट ऑफ 30 पॉइंट्स मिलते। इस तरह से मैंने जो कंपोजिट डिजाइन किया वो 100 और 59 मैंने 59 आउट ऑफ 100 किया। उसके बाद जो मैंने वर्ड्स एनवाइड ट्रांसक्रिप्ट जो मेरा स्क्रिप्ट किया, उसने ग्रामर को हाईलाइट किया, फ्रेज को हाईलाइट किया और वोकैबुलरी को हाईलाइट किया। उसमें इसने 3 चीजों को हाईलाइट किया है और इनको हाईलाइट करके इसकी प्रॉपर रिपोर्ट भी जनरेट कर दी इसने। तो लेट्स सी, ग्रामर के अंदर मैंने एक वर्ड बोला था, द परफेक्टली इलस्ट्रेट। द नहीं आएगा, इट परफेक्टली इलस्ट्रेट। ठीक है, शुड बी well worth the time to read, well worth reading, not a time, don't use a time, little long, somewhat lengthy। तो बेसिकली आपकी एक, और यकीन माने कुछ ऐसे वर्ड्स जो अब न्यू स्टैंडर्ड में आ गए वो भी मुझे ये गाइड करेगा कि अब ये वर्ड्स को रिप्लेस करो इन वर्ड से। अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं आई इसके अंदर, लेकिन ये प्रॉपर हमें असेस भी कर रहा है। इसी के साथ पंक्चुएशन टिप्स और मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, मेरी वीकनेस क्या है और मुझे सजेस्ट क्या करता है, ये वो सब कुछ मेरे रिकॉर्ड में आ गया। और उसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करेगा ये और आप स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं।
ये ले, डाउनलोड कर लिया। मैं अगर आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका सेशन स्टार्ट होगा ज़रूर और आप लोग को पूरा टाइम दिया जाएगा बोलने का, लेकिन उसके लिए भी प्लीज़ हैंड रेज कीजिएगा। तो उसी के साथ आपका, क्योंकि अगर सबने अपने माइक खोल दिए तो मेरे लिए, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज़ पेशेंस रखें, आप लोग के साथ ज़रूर डिस्कस होगा, आपकी चीज़ों को ज़रूर समझा जाएगा, सुना जाएगा। इसके साथ और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैंने आपको अभी नहीं बताया। इसके साथ आपके साथ एक अवतार भी है यहाँ पर, और आपको कंप्लीट रिकग्नाइज करता है। वो आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसको करेक्ट करेगा वो। इसी के साथ आपके पास मजीद ग्रामर के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें हमने स्टैंडर्डाइज चीज़ें रखी हैं। ओके, अब बात करते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, चले मैं आपको बता दूं इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। डाउनलोड करने के लिए फॉर अ लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर या सिस्टम है, तो वहां के लिए आपने सिंपल download.tech.edu.pk, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं कि आप लोगों को सही से व्यू हो। दैट इज योर वेबसाइट, और वेबसाइट आपकी ये है, और ये सिर्फ विंडोज है। ठीक है, तो आपने जो हमारी रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो विंडोज 10 है। ठीक है, यानी अगर आपके पास विंडोज 7 या विंडोज 8 है तो उस पर ये नहीं चलेगा। विंडोज 10 और 11 के ऊपर ये सॉफ्टवेयर रन करेगा। ठीक है, तो download.tech.edu.pk आपके पास, मैं ये अब टाइप भी किया और मैं आपको ये दिखा भी देता हूं कि ये काम कैसे करेगा। चलें, ये डाउनलोड किया, ये देखें। आपको जो डाउनलोड करना है वो है टेक ब्राउजर 7.3। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है 7.3। ये इसका सेटअप है, इसको डाउनलोड कर लेंगे विंडोज में तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और जो मोबाइल पे करना चाहते हैं, मोबाइल के लिए आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। हमारा अभी आईओएस नहीं बना है, तो एंड्रॉयड के लिए आपको सर्च करना है टेक ब्राउजर। अभी ये फ्री है, तो आप सबके लिए इस वक्त यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हमारी मैनेजमेंट कब और किस वक्त इसको पेड कर जाए, ये मुझे नहीं पता। तो अभी ये फ्री है, तो जितना दिल खोल के इस्तेमाल करना आप करें, और हमें ज़रूर इसके हवाले से अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। Okay, thank you so much, Mr. Syed Asad Mashkoor, for your demonstration about the AI tools regarding teachers. So we are already running a short time, तो इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स का सेशन जो है वो अनाउंस होने जा रहा है। Okay, Android version, ठीक है, बस दैट्स द लास्ट वन। और एंड्रॉइड वर्जन जो है वो मिनिमम आपका 7 से अबव होना चाहिए, 7-8 से अबव होना चाहिए, तो ही टेक ब्राउजर बेसिकली वर्क करेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब आपकी क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि प्लीज हैंड रेस कीजिएगा, वन बाय वन आप लोग को टाइम दिया जाएगा। इस वक्त मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ, और मैडम की तरफ, मिसेस जुबैर की तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। Again, thank you so much for the detailed description about the usage of AI tools by Tech Browser. But before opening the floor for the question answer, I would like Mr. Akbar Khurshid, who is the CEO of Tech the Education Consultancy, with us, and he wants to share some um, few words with all of you. So, Mr. Akbar Khurshid. Assalamu alaikum everyone. Can you hear me properly? Yes, sir. Your voice is clear. ये आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? आप सुन सकते हैं मुझे?
ओके जी वालेकुम सलाम हाँ, सर। आपके कुछ ओके अगर हम बात करें तो एआई के सेशन के हवाले से, मेरा नाम अकबर खुर्शीद है। मैं टेक एजुकेशन कंसल्टेंसी को एज ए डायरेक्टर लीड करता हूँ और मेरी जो टीम और इसकी जो सपोर्ट मेंबर्स हैं वो आप सबके कंट्रीब्यूशन के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सबकी मौजूदगी हमारे लिए काफ़ी हौसला अफजा है। आप सबकी वजह से ही हम अपने काम की जो है वो डायमेंशंस का तयन करते हैं। हमारा मकसद सिंपल ये कि हम तमाम टीचर्स एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी लर्निंग जो है वो एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की बेसिस पर होती है। खुदा न खास्ता हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे, हम सिर्फ वो शेयर कर रहे हैं कि हम अपनी फील्ड में, अपनी डोमेन में क्या काम करते हैं, क्या काम करना चाहते हैं और हमें किस तरह काम करना चाहिए, और हमारे आपके दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो ताकि हम अपनी एक्सपर्टीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और हम दूसरों के लिए मुफीद मतलब सेगमेंट में काम कर सकें। उम्मीद है कि आपकी समझ में आज के वर्कशॉप के बाद कुछ चीज़ें आई होंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दिए देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एआई वर्कशॉप्स के हवाले से एक मुख्तलिफ मिसकंसेप्शन पाया जाता है और जितने भी टीचर्स या एजुकेटर्स इस पर काम कर रहे हैं उनके दरमियान किसी किस्म की मैं कोरिलेशन नहीं देखता। मेरे कोरिलेशन देखने से मुराद ये है कि वी आर नॉट फोकसिंग ओनली ऑन पाकिस्तान एज फार एज एआई इज़ कंसर्न, वी आर कंसिडरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमाम जगहों पर जो भी कंट्रीब्यूशन हो रही है, हमारी R&D की टीम जो है वो मुस्तकिल इसको मॉनिटर करती है और चीज़ों के बारे से देखती रहती है, काम करती है और डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फेजेस में जाती है। अभी जो आपने एआई टूल देखा है, एआई टूल्स फॉर टीचर्स, अभी आज आपको सर साहब ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, लेकिन सिमिलरली एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स भी डिज़ाइन हुए हैं और दिस इज़ ओनली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह वी क्लेम दैट कि वी आर स्टार्टिंग दिस वन एज ए पायनियर। हम पाकिस्तान में टीचर्स कम्युनिटी को अपना एम्पावर करना चाहते हैं और हमारा मकसद सिंपल ही यही है। आपके सवाल जवाब से पहले मैं सिर्फ एक डिस्कशन करना चाहूँगा कि बीइंग एआई के हवाले से जब भी काम शुरू हुआ और मेरे ध्यान में भी बात थी और मैं हमेशा से सोचता रहा कि वाई एआई सडनली एवरीवेयर। मेरा पहला सवाल अपने आप से ये था कि वाई एआई इज सडनली एवरीवेयर। नंबर 2, वाई देयर इज अ बिजनेस और नॉइज अराउंड अस फॉर एआई। क्यों इतना सारा शोर एकदम से एआई के हवाले से, एकदम से हमारे पास अप्रोच चेंज क्यों हो रही है और हम हर चीज़ में इस तरफ क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है कि हम ऑल ऑफ सडन जो है वो अपनी डायमेंशन से जिस तरह हम पीछे काम करते आ रहे थे। मैंने आई हैव बीन वर्किंग फॉर द एजुकेशन फॉर मोर देन 43 ईयर्स। मैंने 1982 में अपना कैरियर शुरू किया था और अब मैं 2026 में ये अज्यूम करता हूँ कि एट द एज ऑफ 61 ईयर्स कि मेरी जो तालीम या लर्निंग वाला काम जो है वो अब दोबारा से शुरू हो गया फ्रॉम स्क्रैच। मतलब जो कुछ मैंने पीछे पढ़ा था वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस बन गया है और अब जो है मैं एक स्टूडेंट के तौर पर एआई को अपने साथ कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके दो जवाबात मेरे सामने आए कि एआई की जो पावर है वो थ्रू आउट ट्रांसफॉर्म कर रही है हमारे हर डायमेंशन को, हमारी फील्ड को, हमारी ज़िंदगी को। हर जगह पर एआई का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। तो टीचिंग भी डेफिनेटली इससे मुतासिर होगी और टीचिंग पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और हम इसमें अब जो एआई के फायदे से इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास दो सेगमेंट आ गए। फिर बीइंग अ टीचर दो सवाल मेरे ध्यान में आ गए कि व्हाई एंड हाउ। चलो एआई अच्छी चीज़ है, मान लिया एआई वक्त की ज़रूरत है, मान लिया कि एआई के बगैर अभी हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे होगा। और मतलब व्हाई और हाउ वाला सवाल था वो अब तक मेरा अपने लिए एक क्वेश्चन मार्क बनकर मौजूद था। तो जिस पर हमारी R&D टीम ने काविश की और उसकी काविश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया और एआई स्कूल की सूरत में पहले टीचर्स वाला सेगमेंट तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा स्टूडेंट वाला सेगमेंट इन प्रोसेस है। वो भी इंशाल्लाह अगले एक आध हफ्ते में आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी। मैं आपके सवालों के जवाबात के लिए या FAQ के लिए एज ए टीम लीडर ऑफ माई कंपनी मैं मौजूद हूँ। अगर आप कोई सवाल करना चाहें मैं अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। तो काइंडली प्लीज़ आप सवाल कीजिए। I think Miss Amreen Sheikh भी जो है वो अपना hand raise किया। I think she want to ask something. Mr. Hasib, can you please unmute the mic? अगर कोई सवाल करना चाहें या तो मुझे चैट बॉक्स में दे दीजिए या मुझे कोई आवाज़ वैसे सुनाई नहीं दे रही क्वेश्चन की। अगर कोई सवाल करा तो प्लीज़ काइंडली मुझे मिस करिश्मा या सर असद
मुझे आइडेंटिफाई कर दें। ओके, ठीक है, आप 1 बाय 1 जो है सवाल कर सकते हैं प्लीज। ओके, मिस मुनीबा सैयद जी प्लीज। सर आपने जैसे कहा कि मैंने मैथ्स के लिए क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपको मैथ एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज जेन्युइन रीजन कि आप बाज़ लोगों को मैथ्स नहीं आती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो चैट जीपीटी है उसको भी मैथ नहीं आती है। तो अगर हम उस पर रिलायबिलिटी शो करते हैं तो हम कि एक चीज़ जो है वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, खुद टेस्ट करते करते क्रैश हो जाती है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, या हम स्टूडेंट्स को उसके ज़रिए से क्या सिखा पाएंगे जबकि वो खुद ही मैथ के एग्जाम्स के दौरान क्रैश हो जाती है। मैंने खुद इसको टेस्ट करके इस सवाल का देखा। जवाब मैं देना चाहूंगा, अगर इजाजत दें असद साहब, तो मैं इजाजत है आपकी, तो मैं सवाल का जवाब दूं। जी सर, आप अच्छा, मेरा जो मैडम आपका जो मौक़िफ़ है चैट जीपीटी के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है और आप इसमें कहीं पर भी गलत नहीं है। चैट जीपीटी के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम ये एआई इज़ नॉट अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, पहली बात ध्यान में रखिएगा। एआई सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं है, एआई से प्रेडिक्शन करता है। अभी आप नेट पे चेक कर लीजिए, एआई कहीं पर आपसे ये नहीं कहता कि उसकी डेटाबेस में उस सवाल का जवाब मौजूद था या उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन मौजूद था। उसने अपनी उसके उससे कह लीजिए कि प्रेडिक्शन के थ्रू, एआई सिर्फ प्रेडिक्शन देता है, इसके प्रेडिक्शन के थ्रू उसने आपको उसका आंसर दिया होता है और वो किस जगह पर गलत करता है वो हो जाता हूँ आपको मैं। पीछे ये एलएलएम इस्तेमाल करता है कि लार्ज लाइब्रेरी मॉड्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और जो इंटरलिंक होते हैं पीछे से। ये हमारे पास इसके वर्जन की, अगर आप कोई फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं टीचर, तो डेफिनेटली आपको 100 में से 8 से 10 आंसर गलत मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी कर देता हूँ। मुफ्त में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, मुफ्त में दुनिया में कोई दुआएं भी नहीं देता मैडम आज तो जो चैट जीपीटी अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो जरूर आपको, अगर 100 में से 80 सवाल सही दे दे, 20 गलत दे दे, तो उसका क्या जाता है, मुफ्त में था ना। हाँ, जब आप उसका पेड वर्जन लेंगे और आप उसके बाद गलती के बाद, तो नीचे डिस्क्लेमर में लिखा होगा कि ये 2% गलती करेगा। अब वो 98% क्वेश्चन आपको सही देगा और 2% क्वेश्चन गलत, ये पेड वर्जन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी किस लिए, कि वो एलएलएम के अंदर डेटाबेस की शफलिंग की वजह से होता है और किसी वजह से नहीं होता। फिर वही बात कहूंगा कि ये प्रेडिक्शंस करता है, ये प्रेडिक्शंस देता है किसी सवाल के सॉल्यूशन को। मैथ्स के तो कई तरीके हो सकते हैं सवाल सॉल्व करने के, असद साहब मैथ्स नहीं जानते लेकिन मैं तो मैथ्स जानता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई तरीकों से सवाल सॉल्व हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा कई जगहों पर अगर अप्रोच गलत हो, चाहे हमारी या स्टूडेंट की, तो हमारा आंसर भी गलत आएगा। बातों का टीचर भी इस तरह मिस्टेक करता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और चैट जीपीटी मुफ्त में अक्सर व बेशतर गलत मशवरे ही देता है। Very rightly said. Thank you. Anybody else who want to ask questions? Because we have limited time and session is going to be end soon. Please raise your hands. ये आप में से और कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? मिस शुमाइला जी, मिस शुमाइला कुछ पूछना चाह रही हैं? मिस्टर वसीर प्लीज अनम्यूट द माइक ऑफ मिस शुमाइला। हमने माइक की एक्सेस सबको दी है, सिंपल आप माइक पर क्लिक करें, माइक एक्टिवेट हो जाएगा। मिस शुमाइला प्लीज, आप कुछ कहना चाहते हो? मीनवाइल आप अपना चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। ओके, एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में। ओके, हाउ वी कैन यूज दिस इन आवर स्कूल इफ वी डोंट हैव। जी, मुझे एक सवाल मिस गालिबन उमर साहब ने किया है। उमर साहब, ये इसमें उमर साहब ने कहा कि अगर हमारे पास कंप्यूटर्स ना हो। उमर साहब, हमारे पास आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैं इस वक्त बेसिकली कोयटा में हूँ और हमारे पास यहाँ पर बिजली और मतलब इलेक्ट्रिसिटी और नेट का बड़ा फुकदान रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास क्लासरूम में कंप्यूटर्स नहीं है।
लेकिन हम टैबलेट्स यूज करते हैं। गालिबन असद साहब ने आपको बताया होगा, एक शॉर्टकट सॉल्यूशन है हमारे पास। और टैबलेट्स में हम एंड्रॉइड वर्जन यूज कर सकते हैं, वैसे विंडोज टैबलेट भी आते हैं। एंड्रॉइड वर्जन मिनिमम 9+ वर्जन अगर आप यूज करेंगे तो बेहतर होगा। और सो फार मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह पर हैं, बिजली के भी हैं, गैस के भी हैं, पानी के भी हैं, सिक्योरिटी के भी हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ का इंतजार करेंगे कि कोई चीज़ पर्टिकुलरली सहूलत हमें कोई गवर्नमेंट इस तरह की को प्रोवाइड करेगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो हमने अपने तौर पर एक रास्ता निकाल लिया कि हम कंप्यूटर क्लासरूम में नहीं ले जा सकते, लैपटॉप भी शायद नहीं ले जा सकते हो, तो लिहाजा हम टैबलेट्स की बेसिस पे काम कर सकते हैं। ओके, मिस सलाम सर। साहिरा का मैसेज है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है तो उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान में उर्दू में काम करना चाहिए था। और हमारा जैसे जापान की बात करें, कोरिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, चाइना की बात करें, तो दे हैव करिकुलम इन देयर ओन लैंग्वेजेस। अल्टीमेटली पाकिस्तान में एक इदारा जिसका नाम है कौमी अंजुमन तरक्की उर्दू, उसका काम था कि इसमें डाटा डेवलप करना, उसमें लाइब्रेरीज डेवलप करना, उसकी इंटीग्रेशन कंप्यूटर में लेके आना। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में कंप्यूटर मतलब विंडोज का वर्जन अवेलेबल है, लेकिन उर्दू के हवाले से मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। उर्दू के लिए भी हमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर जाना पड़ता है। हमारी नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी ने इस पर कोई काम नहीं किया। ये गवर्नमेंट स्केल का काम है, कन्वर्जन करना। एक बहुत बड़े सरमाए की जरूरत होती है, कैपिटल की। किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से आप कंटेंट डेवलपमेंट नहीं कर सकते, किसी एक की प्रॉपर मतलब ये जिम्मेदारी तो नहीं है। तो हमारे पास से जो है वो इस वक्त हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के इश्यूज हैं। अब हमारे अपने तौर पर हम जितना कर सकते हैं कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा बजट इसके लिए दरकार होता है और डेफिनेटली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ कि हमारा सारा काम, सारा कंटेंट, सारी डेवलपमेंट उर्दू में होनी चाहिए। ओके, और कोई क्वेश्चन है? टाइम इज ऑलमोस्ट अप नाउ। यहाँ एक अनाउंसमेंट है कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे आपकी जीमेल आईडी के ऊपर। एंड जो नेक्स्ट सेशन हम प्लान कर रहे हैं दैट इज एआई टूल्स फॉर द स्टूडेंट्स। उसके अंदर हम पेरेंट्स को भी अलाउ करेंगे कि वो भी सेशंस को अटेंड कर सकें। तो आपको अगर इस सेशन को इंफॉर्मेटिव लगा और आप इसमें से कुछ चीज़ों को ग्रैब कर सके और आगे इम्प्लीमेंटेशन के फेज पे जाएंगे तो डेफिनेटली ये एक फ्रूटफुल सेशन रहेगा हमारे लिए। आप सबकी प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया। अकबर साहब, आपकी मैसेजेस को जो आपने रिस्पॉन्ड किया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शुक्रिया। असद साहब, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम पार्टिसिपेंट का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बात, हमारे